کچھ عناصر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں۔ کراچی اس وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں جس کے پاس فعال بلدیاتی نظام نہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سندھ میں بلدیاتی اداروں کو ایسے مالی اور انتظامی اختیارات دیے گئے ہیں جو پنجاب میں حاصل نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 140A پر حقیقی طور پر سندھ میں عمل ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طاہا احمد نے کہا صوبے کو غداری سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے، نئے صوبوں کی بات آئین پاکستان میں موجود ہے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ دیا، اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہے نہ انہیں بجٹ سے متعلق کچھ معلوم ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا عثمان بوزدار کا ویژن ماحولیات جبکہ ہمارا ویژن ماحولیات ہے۔ ماحولیات کے لیے جو پیسے دیے گئے 100% استعمال ہوئے۔ 1000 سے زائد افراد پر مشتمل تحفظ ماحولیات فورس بنائی گئی۔ ازما بخاری کا کہنا تھا پوائنٹ سکورنگ ہی موجودہ اپوزیشن کا اصل مقصد بن چکا ہے۔ ہم اپوزیشن میں تھے تو 4 منٹ نہیں بولنے دیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر امریکی حملہ UN چارٹر اور جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی بھی خلاف ورزی ہے۔ حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور اس کے ان تمام فریقین پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ بحرین کی ایرانی ڈرون حملے کی مذمت، بحرین کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کئی ایرانی ڈرونز نے بحرینی سرزمین کو نشانہ بنایا اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ ایرانی حملوں سے خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق یہ کارروائی امریکہ کی جنگ بندی اور آبنہ ہرمز سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی پر کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس کے لیے دن رات انتھک محنت کی، انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان دہشت گردی کی جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خاران اور مستونگ میں 2 آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ، ہندوستان کی 8 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 25 اور 26 جون کو خاران میں 3 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر پیشگی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ایک خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گردی کی مکمل بیخ کنی تک کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز کی جرات اور پیشہ ورانہ مہارت پر قوم کو فخر ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خام تیل ریفائنریز استعمال کرتے ہیں، ہم تو ڈیزل اور پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ لیوی بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے کی سطح پر کم ہے۔ یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا کیس، عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر سے پیشرفت رپورٹ طلب، اینٹی کرپشن نے موقف اپنایا۔ ملزم کی ملی بھگت سے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا۔ افسران اور ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ سے سرکاری خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچا۔
मुलजिम जमीर अब्बासी ने बताया, मंसूबे का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी रिश्तेदार है। अदालत ने केस के ज़मनी चालान को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। और कराची के इलाके सुरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाबहक मिसबा की कब्र कुशाई। मकतूला के भाई ने बताया, मिसबा के शौहर की चौथी शादी थी और उस पर बहुत तशद्दुद करता था। मुलजिम ने 3 शादियों को खुफिया रखा। कब्र कुशाई अदालती हुक्म पर की गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है, सैंपल ले लिए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट में वाज़ेह होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया था। कहा था, ईरान अहमकाना अंदाज में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारी तरफ से जो जवाब आएगा वो सबको पता चल जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर ईरान को इस बात पर इख्तिलाफ है कि मफाहमती यादाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं, न ही जंगबंदी मुआहदे के। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले जंगबंदी के खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले का नतीजा माजी की तरह अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी की सूरत में निकलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहीगीरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान का मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लेबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया, फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उम्मीद है ये पेशरफ्त लेबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। अमरीका चाहता है लेबनान और इसराइल के आवाम एक महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तक़बिल गुजार सकें। ये फ्रेमवर्क हतमी अमन मुआहदा नहीं बल्कि आइंदा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दामात के लिए एक बुनियादी खाका है। ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों के बाद भारत ने अपने फौजियों की अमवात भी तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी हलाक हुए। भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ कर लिया। 6 एहलकारों के नाम जाहिर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रूल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी छुपाती रही। फौजियों के वरसा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। हुकूमत ने साबित कर दिया वो अवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर अवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। ये अवाम दुश्मनी है कि जंग के दिनों में भी अवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूट मार गरीबों और मिडिल क्लास पर डाका है। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती निज़ाम की नई तश्कील में फ़ाल किरदार अदा करेगा। मालियाती निज़ाम सॉफ्टवेयर और ब्लॉकचेन के जरिए खुदकार होता जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का ज़्यूरिख में आलमी फोरम से खिताब। कहा, डिजिटल असासों की बालादस्ती का दौर शुरू हो चुका। पाकिस्तान टोकनाइज्ड फाइनेंस के कवायद बनाने वालों में शामिल होगा। मुआशी जिद्दत को रोकने के बजाय मौसर अंदाज में रेगुलेट करना जिम्मेदारी है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल मोबाइल शॉप का मालिक मुलजिम नौमान अफसल 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम के बैंक अकाउंट से
15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने रकम बजरिया मनी लॉन्ड्रिंग जायदादों में मुंतकिल की। पाकिस्तान की गलियां और माहौल मरीज बनाने की फैक्ट्रियां हैं। बीमारियों की सबसे अहम और बड़ी वजह आलूदा पानी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमारे यहाँ हमेशा ये खदशा रहता है मार्केट में दस्तयाब दवा असली है या जाली। मुल्क भर में अद्वियात की मॉनिटरिंग के लिए बारकोड सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरे वाला मोबाइल फोन रखने वाला हर शहरी मेडिकल स्टोर पर दवा की तस्दीक कर सकेगा। वेनेजुएला में खौफनाक जलजले की हलाकत खेजियां, अमवात की तादाद 920 हो गई, हजारों अफराद लापता और सैकड़ों जख्मी। दारुल हुकूमत कराकस और दीगर मुतासरा इलाकों में सैकड़ों इमारतें जमींबोस हो चुकी, हजारों अफराद मलबे तले दबे हैं। लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं। साइमन बोलेवारा एयरपोर्ट की बंदिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। अमरीका, तुर्की और कोलंबिया से इमदाद पहुंचा दी गई। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू और गिरदोनवाह में एक ही दिन में 3 बार जलजला, शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहलू से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज्जाक के मुताबिक योब, बारखान, रखनी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजले से मूसा खेल की तहसील कंगरी के इलाके छाप में 90 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 270 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट। फ्रांस भर में 3 साला बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। नेदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। बरतानिया का पनाह गुज़ीनों के लिए कैनेडियन तर्ज पर नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला। नए निजाम के तहत जामियात, कम्युनिटी ग्रुप्स और कारोबारी इदारे पनाह गुज़ीनों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, बरतानिया का नया इमिग्रेशन निजाम हकीकी और हकदार पनाह गुज़ीनों के लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1000 रुपए कम होकर 4,31,236 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $10 कमी के साथ $4,088 का हो गया। फी तोला चांदी 271 रुपए कमी के साथ 6,393 रुपए में फरोख्त हो रही है।